حج 2026 کے 4 اسپیشل پیکیجز الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز 15 جنوری 2026 بکنگ کی آخری تاریخ۔ السلام علیکم، بی بی این خبرناموں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آفرین شمیم۔ خبرنامہ کی شروعات میں ہیڈ لائنز۔ ہارورڈ کینیڈی اسکول میں عالمی قیادت کا اہم پروگرام، ریونت ریڈی نے کامیابی سے کیا مکمل۔ 20 ممالک کے عالمی قائدین کے ساتھ لیڈرشپ ان دی 21st سینچری پروگرام میں شرکت۔ ونگز انڈیا 2026 ایئر شو، مرکزی و ریاستی وزراء کی شرکت۔ بھارت کی ہوابازی ترقی پر زور۔ مامنور ایئرپورٹ کے لیے 253 ایکڑ زمین مرکز کو منتقل، ورنگل کا خواب پورا ہونے کے قریب۔ دارالشفا تا فلک نما چندرائن گٹا میٹرو راہداری منصوبے میں بڑی پیش رفت، 85% جائیدادوں کا حصول مکمل، رمضان سے قبل انہدام مکمل کرنے کا منصوبہ۔ فون ٹیپنگ کیس، KCR نے SIT نوٹس پر داخل کیا جواب۔ بلدیاتی الیکشن میں مصروفیت، مقررہ وقت پر پیشی سے معذرت، نئی تاریخ کی درخواست۔ حیدرآباد میں آتش زدگی واقعات کے بعد فائر سیفٹی انسپیکشن دوسرے دن بھی جاری۔ جوبلی ہلز میں نیروز کی دکان ضبط، نامپلی میں 6 منزلہ فرنیچر عمارت سیل۔ اب خبریں تفصیل سے۔ امریکہ میں واقع دنیا کے ممتاز تعلیمی ادارے ہارورڈ کینیڈی اسکول میں تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے عالمی قیادت کے ساتھ ایک اہم تعلیمی سنگ میل عبور کرتے ہوئے لیڈرشپ ان دی 21st سینچری کے ایگزیکٹو ایجوکیشن پروگرام کی کامیاب تکمیل کر لی۔ اس پروگرام میں 20 ممالک سے تعلق رکھنے والے 62 طلبہ و عالمی قائدین شریک تھے، جہاں وزیر اعلیٰ نے نہ صرف ماہر اساتذہ اور فیکلٹی سے رہنمائی حاصل کی بلکہ مختلف ممالک کے تجربہ کار قائدین سے بھی سیکھنے کا موقع ملا ہے۔ یہ سخت اور جامع پروگرام روزانہ صبح 7 بجے سے شام 6 بجے تک جاری رہا، جس دوران درجہ حرارت -15 سے -24 ڈگری سیلسیس تک رہا اور شدید برفباری، طوفان، 3 فٹ سے زائد برف باری اور یکبستہ ہواؤں کے باوجود کلاسز جاری رہیں۔ پروگرام کی کامیاب تکمیل پر فیکلٹی کی جانب سے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سمیت تمام شرکاء کو سرٹیفکیٹس پیش کی گئی، جسے عالمی سطح پر تلنگانہ کی قیادت اور فکری موجودگی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ایشیا کی سب سے بڑی سول ایوی ایشن نمائش، ونگز انڈیا 2026 ایئر شو میں مرکزی شہری ہوابازی وزیر شری رام موہن نائیڈو، تلنگانہ کے ڈپٹی وزیر اعلیٰ بٹی وکرمارکا اور TPCC صدر مہیش کمار گوڑ نے شرکت کی۔ اس موقع پر بھارت کی ہوابازی صنعت کی مقامی سے عالمی سطح تک ترقی کے منصوبوں پر زور دیا گیا۔ تلنگانہ ریاست کا مقصد بھارت کا اہم ایرو انجن اور MRO ہب بننا ہے اور جدید مینوفیکچرنگ، ڈرون ٹیکنالوجی اور جدت کے لیے مضبوط ماحولیاتی نظام قائم کرنا ہے۔ حیدرآباد ایئرپورٹ پہلے ہی 100% قابل تجدید توانائی پر کام کر رہا ہے اور ریاست ایک گرین اور ڈیجیٹل ایوی ایشن مستقبل کے لیے تیار ہے۔ اس کے علاوہ ورنگل ضلع میں مامنور ایئرپورٹ کے لیے 253 ایکڑ زمین کو مرکزی ہوابازی محکمہ کو باقاعدہ منتقل کر کے تاریخی قدم اٹھایا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی وزیر اعلیٰ اور معاون وزراء نے مرکزی وزیر کو متعلقہ دستاویزات پیش کیے اور بٹی وکرمارکا نے بتایا کہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی خصوصی کوششوں کے بدولت ورنگل عوام کی طویل خواہش مامنور کے ایئرپورٹ کی تعمیر کی جانب تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، جس سے ریاست میں ایوی ایشن سیکٹر کو فروغ ملے گا اور بھارت کی ترقی میں اہم کردار ادا ہوگا۔ پرانے شہر میں دارالشفا تا فلک نما اور چندرائن گٹا میٹرو راہداری کے طویل عرصے سے زیر التوا منصوبے میں نمایاں پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے، جہاں متاثرہ جائیدادوں کے حصول کا تقریباً 85% عمل مکمل کر لیا گیا ہے۔ حیدرآباد میٹرو ریل حکام کے مطابق مجموعی طور پر 752 جائیدادوں کو معاوضہ ادا کرنے بیشتر عمارتوں کا انہدام انجام دیا جا چکا ہے، جس کے بعد سڑک کی توسیع کے کام مکمل ہو گئے ہیں، جبکہ مزید 136 جائیدادوں کے حصول کے لیے کارروائی جاری ہے اور 10 جائیدادوں سے متعلق مقدمات عدالت میں زیر سماعت ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ تاریخی و تہذیبی عمارتوں کے تحفظ کو ملحوظ رکھا جا رہا ہے اور صرف سرکاری طور پر محفوظ فہرست میں شامل عمارتوں کو ہی تاریخی حیثیت دی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق ماہ رمضان المبارک سے قبل باقی ماندہ جائیدادوں کے انہدام کا عمل مکمل کرنے کے لیے آئندہ 2 دنوں میں کاموں میں مزید تیزی لانے کا منصوبہ ہے، کیونکہ رمضان کے دوران ٹریفک کے دباؤ کے باعث تعمیراتی سرگرمیاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ پردیش کانگریس صدر مہیش کمار گوڑ نے بلدیاتی و مجالس مقامی انتخابات کی تیاریوں میں تیزی لاتے ہوئے ریاست کے 17 پارلیمانی حلقوں کے لیے اسکریننگ کمیٹیوں کے قیام کا اعلان کیا ہے، جو متعلقہ پارلیمانی حلقوں کے انچارج، وزراء، ضلع کانگریس صدور اور عوامی نمائندوں کے ساتھ مل کر امیدواروں کے انتخاب اور انتخابی حکمت عملی کو حتمی شکل دے گی۔ عادل آباد لوک سبھا حلقے کے اسکریننگ کمیٹی کی صدارت رکن اسمبلی پی سدرشن ریڈی کریں گے، جبکہ مختلف پارٹیوں حلقوں کے لیے کنوینرز کے طور پر سیاحت، زراعت، آبپاشی، اقلیتی بہبود، صحت، آئی ٹی، ٹرانسپورٹ سمیت دیگر محکموں کے ریاستی عزراء کو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں۔ ہر کمیٹی میں 2 سے 4 کنوینرز شامل ہوں گے، جن میں واحد مسلم نمائندگی محمد ایوب کو حاصل ہوئی ہے، جنہیں ورنگل لوک سبھا حلقے کی اسکریننگ کمیٹی کا کنوینر نامزد کیا گیا ہے، جس سے کانگریس کی انتخابی سرگرمیوں میں مزید تیزی آنے کی امید ظاہر کی جا رہی ہے۔ فون ٹیپنگ کیس میں جاری تفتیش کے سلسلے میں ایس آئی ٹی کی جانب سے جاری نوٹس پر BRS کے سربراہ اور تلنگانہ کے سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے باضابطہ طور پر جواب داخل کر دیا ہے، جس میں انہوں نے بلدیاتی انتخابات کے پیش نظر امیدواروں کی فہرستوں کی تیاری اور پارٹی امور میں مصروفیت کا حوالہ دیتے ہوئے مقررہ وقت پر پیش ہونے سے معذرت کی ہے۔ KCR نے پولیس کو مطلع کیا کہ نامزدگیوں کی آخری تاریخ کے باعث وہ جمعہ کو تفتیش کے لیے دستیاب نہیں ہو سکتے، تاہم انہوں نے مکمل تعاون کا یقین دلاتے ہوئے تفتیش کے لیے کسی اور مناسب تاریخ مقرر کرنے کی درخواست کی ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ تفتیش ان کی ایراولی رہائش گاہ پر کی جائے گی اور آئندہ تمام نوٹس اسی پتے پر ارسال کیے جائیں۔ 2 صفحات پر مشتمل مکتوب میں سابق وزیر اعلیٰ اور قائد حزب الاختلاف کی حیثیت سے اپنے آئینی اور قانونی موقف کی وضاحت کرتے ہوئے SIT سے تعاون کا اعادہ کیا گیا ہے۔ BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ نے فون ٹیپنگ کیس میں سابق چیف منسٹر KCR کو جاری کی گئی SIT نوٹس پر سخت ردعمل ظاہر کرتے ہوئے اسے کھلا سیاسی انتقام قرار دیا ہے۔ KTR نے کہا کہ KCR وہ عظیم قائد ہیں جنہوں نے طویل صبر، آزمائشوں اور قربانیوں سے بھرپور جدوجہد کے ذریعے علیحدہ ریاست تلنگانہ حاصل کی اور اپنی جان تک کو خطرے میں ڈالا۔ ایسے رہنما کے خلاف انتقامی کارروائی ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS کے 10 سالہ دور حکومت میں KCR کی بصیرت افروز قیادت نے دنیا کو ایک نیا تلنگانہ دکھایا۔ KTR نے الزام عائد کیا کہ نااہل کانگریس جھوٹے وعدے کے سہارے اقتدار میں آئی اور 2 سال گزرنے کے باوجود اپنے کسی بھی وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہی۔ انہوں نے کہا کہ اپنی ناکامیوں اور بد انتظامی سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے کانگریس حکومت اب تحقیقات کے نام پر KCR کو نشانہ بنا رہی ہے، جو انصاف نہیں بلکہ بدنیتی اور شیطانی سیاست کا ثبوت ہے۔ KTR نے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ یہ تفتیش نہیں بلکہ انتقام ہے، جو نوٹس اور دھمکیوں سے نہ تلنگانہ کی تاریخ مٹائی جا سکتی ہے اور نہ ہی KCR کو عوام کے دلوں سے نکالا جا سکتا ہے۔ اگر تلنگانہ تحریک اور ریاست کی خودداری کی توہین کی گئی تو عوام کانگریس کو مناسب جواب دیں گے۔ BRS عوام کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی اور اس ظالمانہ حکمرانی کے خلاف جدوجہد جاری رکھے گی، کیونکہ تلنگانہ کی تاریخ تحقیقات سے نہیں بلکہ عوام کے فیصلے سے لکھی جائے گی۔ سمکا سارلما جاترا کے موقع پر حضرآباد کے MLA P کوشک ریڈی، جو اپنی اہلیہ اور بچے کے ساتھ عام بھکت کی طرح ماتھا ٹیکنے اور منتیں پوری کرنے پہنچے تھے، مگر پولیس نے انہیں زبردستی روک کر گرفتار کر لیا، حتیٰ کہ ناریل بھی توڑنے نہیں دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کی اہلیہ کو بھی عبادت سے روکا گیا۔ BRS قیادت نے اس واقعے کو آئین کے منہ پر تماچا قرار دیتے ہوئے کہا کہ عوامی نمائندوں کو ان کے ہی حلقے میں مذہبی و عوامی پروگراموں میں شرکت سے روکنا سیاسی انتقام کی بدترین مثال ہے۔ بھکتی کو دبایا نہیں جا سکتا، خواتین کی عزت کو پامال نہیں کیا جا سکتا اور تلنگانہ کے وقار کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔
रियासती हुकूमत फौरी अदालती जांच, जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अवाम को वाज़ेह जवाब देना होगा, क्योंकि तेलंगाना के अवाम सब कुछ देख रहे हैं और देवियों की गवाही में इस नाइंसाफी का हिसाब जरूर होगा। కూర్చోండి సార్, కూర్చోండి. It is my first right to ask you. I'll file a case against you. Why not? You tell me first. Why are you pushing me? Why are you pushing me? Whatever you want, you can do. One more vehicle. అమ్మా మీరు ఒక్క అన్యాయంగా ఈ ఏసీపీ వచ్చి నేను మొక్కులు చెల్లించుకోవడానికి వస్తే గద్దల మీదకి వెళ్ళి నన్ను నా హస్బెండ్ నా బిడ్డను గుంజుకొని పోతుంది. నేను నా ఫస్ట్ मिडारम महाजात्रा के आगाज की अलामत के तौर पर कबायली रवायत के मुताबिक एक मुनफरिद और मुक़द्दस मंजर उस वक्त देखने को मिला जब मुलुगु जिले के एसपी सुधीर रामनाथ ने देवी समक्का की आमद के खैर मकदम में फिजा में हवाई फायरिंग की। ये रस्म इस बात की अलामत है कि देवी समक्का सारालम्मा के जंगलात से निकलकर मिडारम के मुक़द्दस गदेलू जपूत्रा की जानिब तशरीफ ला रही है, जिसे मिडारम महाजात्रा की सबसे अहम और ख़दीम रवायत में शुमार किया जाता है। क़बायली अक़ीदे के मुताबिक इस रवायती सलामी के साथ ही दुनिया के सबसे बड़ी क़बायली यात्रा का बाज़ाब्त आगाज़ हो जाता है, जहां लाखों अक़ीदतमंद देवी समक्का सारालम्मा के दर्शन के लिए उमड़ आते हैं। ये मंजर तेलंगाना की क़बायली सक़ाफ़त, अक़ीदत और सदियों पुरानी रवायत का जीता जागता इजहार है। मिडारम में मुनक़द होने वाली आलमी शोहरत याफ्ता समक्का सारालम्मा महाजात्रा के मौके पर बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर हैदराबाद के डिप्टी हाई कमिश्नर मिस्टर गिरीत विन ओवन ने श्री समक्का सारालम्मा मंदिर का दौरा किया और खुसूसी दुआएं की। इस मौके पर वो रवायती तेलंगाना हैंडलूम लिबास में मलबूस नजर आए और अक़ीदत के साथ तोला बरम की रस्म में हिस्सा लिया। इसके हमरा रियासती वजीर सितक्का और जिले कलेक्टर भी मौजूद थे, जिन्होंने इन्हें मिडारम महाजात्रा की रूहानी, सकाफती और कबायली अहमियत के साथ साथ लाखों अक़ीदतमंदों के लिए किए गए इंतजामात, सहूलियात और सिक्योरिटी इक़दाम से तफसीली तौर पर आगाह किया। इस दौरे ने तेलंगाना की कदीम रवायत और कबायली अक़ीदत को आलमी सतह पर उजागर किया। मिनी मिडारम यात्रा के दौरान हैदराबाद के एमएलए पी कौशिक रेड्डी को बगैर किसी नोटिस और कानूनी इजाजत के पुलिस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में ले लिया है, जिसमें एमएलए ने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और इसे अवामी नुमाइंदों के हुकूक और जमहूरी इक़्तिदार की खिलाफ करार दिया। पी कौशिक रेड्डी ने कहा कि ये कार्रवाई असम्बली के इख्तियारात और अवामी नुमाइंदों के विकार पर सिरे से हमला है। इसके तनाजुर में उन्होंने प्रिविलेज मोशन स्पीकर के सामने पेश के जिम्मेदार अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। एमएलए ने इल्जाम आयद किया कि हुकूमती अहलकार सियासी दबाव में आकर बीआरएस क़यादत को हिरासा करने में मसरूफ़ है और ऐसी नारवा कार्रवाइयों का खामियाजा आइंदा बीआरएस हुकूमत के दौरान भुगतना पड़ेगा। मजीद कहा गया है कि बीजेपी और कांग्रेस अपनी सियासी मुफाद परस्ती के बायस मवाक़े की सियासत में मसरूफ़ हैं और दानम नागेंद्र समेत 10 दीगर एमएलए की नाअहली के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं, ताकि आने वाली ज़िमनी इंतखाबात के जरिए अवामी फैसला सामने आएगा। कौशिक रेड्डी ने अवामी हुकूक, मजहबी रवायत और रियासती विकार के दिफा के लिए अवाम के साथ खड़े रहने का अज़्म ज़ाहिर किया। बिड्डा నిన్ను అసలే ఇష్టపెట్టం, నువ్వు రాసి పెట్టుకో. నేను ప్రతి ఆఫీసర్ కూడా చెప్తున్నా, ఇవాళ ఓవర్ యాక్షన్ చేసిన ప్రతి ముగ్గురు ఆఫీసర్లకు చెప్తున్నా, ఇవాళ బిడ్డ దినాలు లెక్క పెట్టుకోర్రి. ఈ రోజు నుంచి కరెక్ట్గా 3 ఏళ్ళ మా గవర్నమెంట్ వస్తుంది.
తేకిస్తాం, ఏడున్నా తేకిస్తా, రాసి పెట్టుకోండి అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. మీ సిపిఐ కావచ్చు, ఏసీపీఐ కావచ్చు, సిఐ కావచ్చు, తేకిస్తా, 7 చెర్ల నీళ్లు తాగిస్తా. 3 ఏళ్ల తర్వాత మా ప్రభుత్వం వస్తుంది, గ్యారెంటీగా అప్పుడు తేకిస్తా. ఇప్పుడు కూడా మిమ్మల్ని ఎస్సీ కమిషన్ ముంగట నిలబెట్టిస్తా, స్పీకర్ ముంగట నిలబెట్టిస్తా, నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ ముంగట నిలబెట్టిస్తా, అవసరమైతే నేషనల్ ఎస్సీ కమిషన్ దగ్గర కూడా నిలబెట్టిస్తా, నేషనల్ హ్యూమన్ రైట్స్ దగ్గర కూడా నిలబెట్టిస్తా అని హెచ్చరిస్తూ ఎవరిని కూడా వదిలిపెట్టలేదని తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జై తెలంగాణ, జై. బీజేపీ వాళ్ళు కూడా పిటిషన్ వేసి మహేశ్వర్ రెడ్డి గారు హాజరు కాకుండా మాకు మరొక డేట్ ఇవ్వండి, మరియు 18 తారీఖుకి మా డేట్ ఇవ్వండి అని వాళ్ళు పిటిషన్ వేసారు. అంటే ఎంత స్పష్టంగా కనబడతా ఉంది ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీ కాంగ్రెస్ మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ అనేది మరొకసారి క్లియర్గా కనబడతా ఉంది. ఎందుకంటే దానం నాగేందర్ గారి డిస్క్వాలిఫికేషన్ క్లియర్ కట్. బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే ఉండుకుంటూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీగా పోటీ చేయడం వల్ల క్లియర్ కట్ ఎవిడెన్స్ అయిపోయింది. కాబట్టి డిస్క్వాలిఫై కంపల్సరీ కావాల్సి వస్తుందని ఇలా టైం బై చేయడానికి ఇలా మళ్ళొక్కసారి బీజేపీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్కటైందని చెప్పక తప్పదు. हैदराबाद में हालिया आतिशबाजी के खतरनाक वाक़े के बाद शहर भर में फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन का अमल दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें हाइड्रा, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, फायर सर्विसेज और बिजली के महकमों की मुश्तरका टीमों ने तिजारती इमारतों और दुकानों का सख्त मुआयना किया। इस दौरान जुबली हिल्स रोड नंबर 36 पर नीरोज की दुकान को जब्त किया और नामपल्ली स्टेशन रोड पर रहीम व मन्नान फर्नीचर की 6 मंजिला इमारत को सील कर दिया गया, क्योंकि दोनों मकामात पर आग से बचाव के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जियां सामने आई हैं, जिनमें निचली मंजिलों पर फरोख्त, ऊपरी मंजिलों पर गोदाम और कपड़ों की तैयारी, फायर एंड ओसी का अदम मौजूदगी होना, नाकाफी आग बुझाने के आलात और सीढ़ियों के रास्ते बंद होना शामिल था। हाइड्रा कमिश्नर ए.बी. रंगनाथ ने फौरी कार्रवाई करते हुए इमारतों के बिजली मुनक़ता की वार्निंग बोर्ड्स और बाड़े लगवाई और शहरियों से अपील की है कि अगर कहीं आग से बुझाव के उसूलों की खिलाफ वर्जी या गैर कानूनी गोदाम की निशानदेही हो तो फौरी इतला दे, तस्वीर या वीडियोस के साथ शेयर किया जाए। शिकायत दर्ज हाइड्रा कंट्रोल रूम या व्हाट्सएप पर भेजी जा सकती हैं ताकि मजीद हादसा से बचा जा सके। आज दूसरे दिन भी हाइड्रा टीमों ने शहर भर में दुकानों और तिजारती इमारतों की जांच जारी रखी। इसी दौरान इसी कार्रवाई के लिए कुल 6 फर्नीचर्स की दुकानें सील की गई। अवामी मसाइल के हल और शहरी फलाह के लिए अपनी खिदमत जारी रखे हुए AIMIM ने याकुतपुरा में मुकामी रिहायशियों से बराह रास्त राब्ता जारी है। पार्टी के MLA जाफर हुसैन मिराज ने छतरी नाका में वाक़े मस्जिद मुंशी शाह में जुमा की नमाज अदा करने के बाद मुकामी शहरियों और मुसल्लियों से मुलाकात की और इनके मसाइल सुनकर हाल के इक़दामात पर गौर किया। इस मौके पर उन्होंने तालाब कट्टा रेलवे ट्रैक के करीब ज़ेरे तामीर रेलवे अंडरपास ब्रिज और रिटर्निंग वॉल के कामों का भी मुआयना किया। मुआयने के दौरान तालाब चंचलम कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना, इलाके के रिहायशियों और AIMIM प्राइमरी यूनिट के अरकान भी मौजूद थे। MLA जाफर हुसैन मिराज ने कहा कि शहरी सहूलियात की बेहतरी और बुनियादी ढांचे की मजबूती के लिए पार्टी मुसलसल इक़दामात कर रही है और अवामी फलाह को अपनी अव्वलीन तरजीही करार देती है। बाद नमाज जुमा में तालाब कट्टे में जो RUB का काम चल रहा था रेलवे ट्रैक के पास, वो काम का मुआयना किया। उसके साथ साथ यहाँ पे जो रेलवे ट्रैक के पास रिटर्निंग वॉल का एक काफ़ी दिन से प्रपोजल था, सैंक्शन होने के बाद में वो काम को आज आगाज़ करे हैं। उसका भी मैंने इंस्पेक्शन करा, जिसकी लागत है 1,87,00,000 1,87,00,000 का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह शुरू होगा। ये हो जाने की तरफ से ट्रैक के बाजू की सीधी रोड अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मुकम्मल हो जाएंगी। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास तवज्जो की तरफ से और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए दिन जहाँ कहीं भी याकुतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में कामों की ज़रूरत होती है आगे बढ़ के आती है और काम कराती है। मेरे साथ में यहाँ के मुकामी कॉरपोरेटर डॉक्टर समीना मैडम भी आज के इस दौरे में मौजूद है
और बस्ती के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर जिम्मेदारों के साथ साथ बस्ती के लोग भी हमारे साथ मौजूद है। इन लोगों का एक ज़माने से ये था कि भाई ये रोड को न सिर्फ मुकम्मल करना है बल्कि रेलवे ट्रैक के ऊपर जो है बाजू में उसकी दीवार को रेस करना, वो भी काम शुरू हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला जब अंडरपास हो जाने के बाद यहाँ के लोगों को काफ़ी चीज़ों की सहूलत होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। बल्दी इंतखाबात के सिलसिले में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आदिलाबाद जिले इंचार्ज व रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेहराज ने वादे किया है कि आदिलाबाद म्युनिसिपल इंतखाबात में मजलिस का किसी भी जमात से इत्तेहाद नहीं होगा। उन्होंने 39 में से 24 वार्ड्स के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया और कहा कि बाकी उम्मीदवारों का ऐलान जल्द किया जाएगा। जाफर हुसैन मेहराज ने दावा किया कि मजलिस इस बार काबिल जिक्र नशिस्तें जीतेंगी। उन्होंने बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी भी इंतखाबी मुहिम के लिए आदिलाबाद आएंगे। चेयरमैन उम्मीदवार का ऐलान ताहाल नहीं हुआ। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ आदिलाबाद म्युनिसिपल इलेक्शन में पार्टिसिपेट न सिर्फ कर रही है बल्कि इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमको अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और आवाम का भरोसा हमारे ऊपर है। हम आवाम से इल्तिजा करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि अपना एक कीमती वोट मजलिस के हक़ में देके अपना सबूत दीजिए। इत्तेहाद का न सिर्फ बल्कि डेवलपमेंट का और तमाम हम BC SC सबके लिए हम प्रोवाइड करेंगे टिकट्स। हम उम्मीद करते हैं कि मजलिस अब की बार बेहतरीन परफॉर्मेंस करेंगे आदिलाबाद। सभी किसी अलायंस रहेगा या फिर आप नहीं, अभी कोई किसी के साथ अलायंस नहीं है। हम हमारे बलबूते पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। సార్ విడ్రాయల్స్ వరకు ఏమన్నా అధిష్టానం అంటే స్టేట్ లెవెల్లో ఏమన్నా నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది? స్టేట్ లెవెల్ తెలంగాణ మన తెలంగాణ ఏం కావాలి తెలంగాణలో అంటే కాంగ్రెస్ తోటి పొత్తు ఏమన్నా ఏం లేదండి। మన పార్టీ సెపరేట్ కంటెస్ట్ చేస్తారు, जीतेंगे। उसके बाद में जो भी फैसला होगा जीतने वाले उम्मीदवारों के साथ डिस्कशन होगा, उसके बाद में कोई भी फैसला करेंगे। सर प्रचाराనికి असद साहब अकबर साहब आने का चांस है? तेलंगाना में होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के मद्देनजर सदाशिवपेट म्युनिसिपालिटी में BRS, कांग्रेस, BJP, MIM और आज़ाद उम्मीदवारों ने आज नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी दिन अपनी नामजदगियां जमा करवाईं, जिससे इलेक्शन की सबकत की लड़ाई गर्म हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। जो 17 नंबर वार्ड से उम्मीदवार से कांग्रेस पार्टी से जो मेरे को टिकट दिया गया, मेरे पे भरोसा रख के, जो हाई कमांड जो उनकी जो हर जो काम गवर्नमेंट से जो भी बेनिफिट्स आएंगे डेवलपमेंट के रहने दो या लोन्स रहने दो, वो पूरे मुकम्मल करने के लिए तमाम आवाम के लिए कोशिश करूँगा। सबको किसी भी अगर कॉम्प्लेंट न्याय सरकार में खिदमत करने के लिए मैं तैयार हूँ। और बार बार अपील करने की वजह यही है, 17 नंबर वार्ड के माँ और बहनों से भाइयों से यही अपील करना चाह रहा हूँ, जो हुकूमत ने जो मेरे ऊपर भरोसा रख के 17 नंबर वार्ड का जो टिकट मेरे को दिए, जो आप लोग सब मिलके मेरे को वोट डाल के 17 नंबर वार्ड से उम्मीदवार से जिताए तो मैं आप लोगों की खिदमत 24 घंटे के लिए मैं अवेलेबल रह के खिदमत करता हूँ। बल्कि मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी को जो हाथ के निशान को वोट दे के मेरे हाथ मजबूत करके जिताना बोल के आपसे अपील कर रहा हूँ। संगारेड्डी जिले के जहीराबाद में पुलिस ने एक संगीन चेन छीनने के केस को हासिल करते हुए 2 मुल्जिमान सैयद अयाज और मोहम्मद निजाम को गिरफ्तार कर लिया। जहीराबाद टाउन पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान DSP B सईदा नायक ने बताया कि 22 जनवरी को आदर्श नगर कॉलोनी में 2 मुल्जिमान ने एक खातून को रोका, चाकू के जोर पर धमकाया और इसके गले से 2.5 तोला सोने की मंगलसूत्र छीन कर बाइक पर फरार हो गए। CCTV फुटेज की मदद से की गई तफ्तीश के बाद पुलिस ने मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया और इनके कब्जे से 4,70,000 रुपये मालियत का सोना, एक बाइक और 2 छुरियां बरामद की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर्कल इंस्पेक्टर शिवालिंगम, टाउन सब इंस्पेक्टर विनय कुमार और दीगर पुलिस एहलकार भी मौजूद थे, जबकि DSP ने आवाम को यकीन दहानी करवाई कि शहरियों की हिफाजत और कीमती असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस भरपूर कार्रवाई जारी रखेगी। 4 సంవత్సరాలు నిజాం 31 ఇయర్స్ వీళ్ళు పటాన్చేరు వాస్తులు వీళ్ళు అంతకుముందు అయాజు ప్రీవియస్ చిన్నపిల్లల కేసు విషయంలో కూడా కోర్టుకు పోవడం జరిగింది। వచ్చిన తర్వాత కూడా అతని ఫ్యామిలీ పరిస్థితి బాగలేక ఇది నేరం చేయాలనే ఉద్దేశంతో కమిటీ అయ్యి తనకు మిత్రుడైన నిజాంని అసిస్టెంట్గా తీసుకొని మన జైరాబాద్ టౌన్ ఏరియాలో వచ్చి ఆదర్శ కాలనీలో ఇట్లా రాబరీ చేయడం జరిగింది। ఈ కేసులో వాళ్ళు ఇంట్రాగేట్ చేస్తే 2.5 గోల్డ్ కన్ఫెక్ట్ చేయడం జరిగింది।
తర్వాత ఒక బైక్ కూడా కన్ఫెస్ చేసి బైక్ మీద వచ్చి ఆ బైక్ కూడా కన్ఫెస్ చేసి ఆ బైక్ను ఆ చాకును ఆ 2.5 గోల్డ్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కేసులో చాలా హారిబుల్గా కష్టం చేసిన టౌన్ సిఐ గారికి, మన శివలింగంకు, మన వినయ్కి, రాజేందర్ రెడ్డికి, ఐడి పార్టీ అందరికీ, ఆ సిబ్బంది అందరికీ ఎస్పీ గారి తరఫున అందరికీ వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాము. సార్ కూడా మళ్ళీ ఇంకా ఈ టౌన్లో సీసీ కెమెరాస్ అన్ని మ్యాక్సిమంగా పెట్టడం జరిగింది. ప్రజలందరూ, టౌన్ ప్రజలందరూ కోఆపరేట్ చేయాలి. వాళ్ళు కూడా ఇంటి దగ్గర కూడా సీసీ కెమెరా పెట్టుకుంటే మనం ఏ క్రైమ్ జరిగినా కూడా వాళ్ళని మనం డిటెక్ట్ చేయవచ్చు తొందరగా. సీసీ కెమెరా లేని ముందర అఫెండర్స్ దొరకకపోవచ్చు. కాబట్టి ప్రజలందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము, ప్రతి ఒక్కరి ఇంటి దగ్గర సీసీ కెమెరా పెట్టుకోవాలని కోరుచున్నాము. టౌన్ ప్రజలు డివిజన్ తరఫున ప్రజలందరికీ మరోసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము. आदिलाबाद की दरगाह हजरत सैयद सिराजुद्दीन औलिया अलमारूफ राजन शाह वली बाग सवार चंदा शरीफ का सालाना उर्स शरीफ 29 जनवरी की शब शानदार और रूहानी माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ। इस उर्स का इनेकाद दरगाह कमेटी चंदा शरीफ के सदर मोहम्मद अशरफ और इंतजामिया की निगरानी में अमल में आया। उर्स के मौके पर तमाम मज़ाहिब के अक़ीदतमंदों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। 27 जनवरी को महफिल समा और इख्तितामी दिन अज़ीमुश्शान महफिल क़व्वाली मुनक़्क़द की गई, जिसमें इसरार निज़ामी ब्रदर्स हैदराबाद और सजाद अजीम साबिरी देवबंद ने कलाम पेश किया। शाही संदल ज़ायरीन के लिए ताम और ख़वातीन के लिए अलहदा इंतज़ामात रहे, जबकि इख्तितामी दिन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने चादर पेश करके अमन व अमान भाईचारे की दुआ की। पुलिस की जानिब से सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में आलमी क़ियादत का अहम प्रोग्राम, रेवंत रेड्डी ने कामयाबी से किया मुकम्मिल। 20 ममालिक के आलमी कायदीन के साथ लीडरशिप इन दी 21st सेंचुरी प्रोग्राम में शिरकत। विंग्स इंडिया 2026 एयर शो, मरकजी व रियासती उजरा की शिरकत। भारत की हवाबाजी तरक्की पर जोर। मामनूर एयरपोर्ट के लिए 253 एकड़ जमीन मरकज को मुंतकिल। वरंगल का ख्वाब पूरा होने के करीब। दारुल शफा ता फलकनुमा चंद्रायन गुट्टा मेट्रो राहदारी मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त। 85% जायदादों का हुसूल मुकम्मिल। रमजान से कबल इन्हेदाम मुकम्मिल करने का मंसूबा। फोन टैपिंग केस, केसीआर ने एसआईटी नोटिस पर दाखिल किया जवाब। बल्दियाती इलेक्शन में मसरूफियत, मुकर्ररा वक्त पर पेशी से माजरत, नई तारीख की दरख्वास्त। हैदराबाद में आतिशबाजी वाक़यात के बाद फायर सेफ्टी इंस्पेक्शन दूसरे दिन भी जारी। जुबली हिल्स में नीरूस की दुकान जब्त। नामपल्ली में 6 मंजिला फर्नीचर इमारत सील। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब और फॉलो, और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई। मनासिक हज के 5 बाबरकत दिन मीना, अरफात व मुज़दलिफा के AC VIP टेंट्स, B कैटेगरी मुअल्लिम के तहत खुसूसी इंतजामात, रिटर्न टिकट, 3 वक्त का इंडियन खाना, स्पेशल हज किट, जियारात, पासपोर्ट व लगेज बैग, अनलिमिटेड लॉन्ड्री, 5 लीटर जमजम और हज वीजा प्लस इंश्योरेंस पैकेज में शामिल।
آج ہی اپنی سیٹ بک کرے محدود نشتے الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز مین آفس ان سائڈ دیوان دیوڑی برانچ آفس بی سائڈ HP پیٹرول پمپ لکڑی کا پل حیدرآباد